Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sajid Sarwar, and with me is Basit Ali Sheikh, my ex-classmate from I'm Sciences. And currently, I'm living in Koblenz. I'm studying from University of Koblenz, doing my master's. And as I said, Basit Ali Sheikh, he's doing his master's from UK. So about me, I'm doing my master's in Web and Data Science. And we have heard like a lot of questions about whether to study in UK or whether to study in Germany or in some other countries. So I thought about making a video where I could like uh, compare the benefits of studying in Germany and studying in UK and get the perspective of a person who is studying in UK at the moment. So for that we have Basit today. So Basit, how are you? Thank you, Sajid, for having me on board. I hope I am audible. Yeah. So, let me introduce myself. So, as you said, that we are old class fellows. So, yeah, my name is Basit Ali, and I'm doing masters from London, particularly from London South Bank University. I'm doing masters in artificial intelligence. So, yeah, that So was my quick introduction. So, first question, why second master? Because I have seen you already did one of your masters from Institute of Management Sciences, I guess in computer science, right? Yeah, exactly. Why the second one? So it was kind of like a gateway for me. And you know that the field which I opted, artificial intelligence, is quite popular in the world actually. So that is why I choose this particular degree. And as masters in UK is for 1 year, so I thought that that wouldn't make any difference or any influence on my future according to the time slot. Yeah, like it's a gateway for your career in UK, right? All right. So I got it. But the thing is, not the gateway. It's actually path to my growth. Perfect, perfect. So yeah, I like it. I like it. So there's a lot of question about like should we study in UK? Should we study in Germany? Should we study in Canada? Like a lot more countries where Pakistani students specifically go to study. And if I talk about all the countries, there are pros and then there are cons. Like some countries, they are like financially so much expensive. Then there are country where the degree value and career perspective, the career approaches are like not that good. So I would ask you the first question I would ask you is why UK basically? And Uh, why not other Agar, countries like Canada, and why not Canada, Germany, and many other countries, many other options that you had? Why particularly you chose UK? so अगर यूके को देखा जाए ना साजिद, तो मैं यही कहूँगा कि जर्मनी में अगर तू देखता है तो जर्मनी में मेरे ख्याल से मास्टर्स 2 सालों का है। नॉट श्योर। Yes. हाँ तो यही चीज़ है ना कि मतलब दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में अगर मास्टर्स को देखा जाए तो मास्टर्स 2 सालों का है और यूके में मास्टर्स 1 ईयर का है। दूसरा बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि मैं भी जर्मनी और यूके में कंफ्यूज था। तो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ना लैंग्वेज बैरियर आ जाता है आपका, जॉब में भी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, स्टडीज़ में भी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। दूसरा ये कि फिर लैंग्वेज की वजह से ना वो ज़्यादातर लोग लोकल लोगों को प्रेफर करते हैं। सो ये एक रीज़न थी कि मैंने यूके चूज़ किया था। ठीक ठीक, हाँ एग्जैक्टली जो चीज़ें तूने मेंशन की, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर, तो यस, अगर आपके पास लाइक विदाउट विद लैंग्वेज अगर आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो विदाउट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश बेस्ड जॉब, अगर आप टेक्निकल जॉब्स की बात करें यहाँ जर्मनी में, तो यू हैव लाइक मे बी 4 5 अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट द लैंग्वेज। तो हाँ, ये चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पे है और गुड। दूसरा ये कि लंदन में यूके में ना आपको हर किस्म का कल्चर मिल जाता है। मतलब यूके में आपको चाइनीज भी मिलेगा, इंडियन भी मिलेगा, पाकिस्तानी भी मिलेगा, हाँ, पाकिस्तानी तो जर्मन भी बहुत मिलेगा। मिलेगा डेफिनेटली। पाकिस्तानी बिल्कुल, अभी ये चीज भी है, इस पे भी आगे हम जाके बात करते हैं कि आगे अब जो है सीन जो है स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ हो रहा है। चलें उसको लेटर सेक्शन में कवर करेंगे। तो ये इसमें एक कॉमन वजह है कि मतलब यूके इसलिए बेटर है कि एक तो कल्चर
मल्टीकल्चर इन्वायरमेंट है, आप हर कल्चर हाँ, के काइंड साथ ऑफ ब्लेंडेड डाइवर्स हो। है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, स्पेशली अगर बड़ी सिटीज की बात की जाए, लंदन, बर्मिंघम उस साइड पे, तो पाकिस्तानी इंडियन, मैं बात एग्जैक्टली। इंडियन। दूसरा, लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, सो दैट्स नाइस टू हियर। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ यूके एंड जर्मनी। सबसे पहला जो सवाल आता है स्टूडेंट्स का वो आता है, मींस फॉर मी आल्सो, और तेरा भी डेफिनेटली यही रहा होगा, कि जब आप स्टडीइंग अब्रॉड की बात करो तो पहला जो क्वेश्चन आता है फाइनेंसेस, पैसा कहाँ से आएगा और कितना आएगा। तो उसका मैं पूछूंगा कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने तो यूके पे इतनी रिसर्च नहीं की पर्सनली, मैंने दूसरे ऑप्शन, स्पेशली मैं कहूँगा मैंने एक साल तकरीबन स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर करने में लगाया, डिफरेंट कंट्रीज की। यूके की भी कुछ स्कॉलरशिप्स मैंने एक्सप्लोर की थी, बट नहीं, उस टाइम पे नहीं हो सका था मेरा। तो उस चीज़ का मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मैं तेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात करूँ, फ्रॉम डे वन टिल यू लैंडेड इन यूके, टोटल एक्सपेंसेस। यार, इसमें जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आ जाता है ना, मतलब शायद जर्मनी का मुझे पता नहीं है, वो यूके वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है, ब्लॉक अकाउंट। तो वो आपने ना अच्छी खासी स्टेटमेंट बनानी होती है। तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो काइंड ऑफ लाइक, आप ऐड कर लो 12,000 पाउंड आपका लिविंग एक्सपेंस है, और प्लस आपकी जितनी फीस होती है। ठीक है, तो फीस डिपेंड करती है, कुछ की 15,000 होती है, कुछ की 11,000 होती है, कुछ की 12,000 होती है। तो आपने फीस जमा करानी होती है, और जितनी अमाउंट आपकी रह जाए प्लस 1 ईयर, वो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। जो कि बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे ख्याल से जब मैं आ रहा था तो उस टाइम पे कोई 60 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ती है फॉर लाइक 2 मंथ्स। तो बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो 50% फीस है वो आपको पहले जमा करानी पड़ती है। सो अगर 50% की बात की जाए, इसी तरह 15 लाख रुपए हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप 5 लाख रुपए ऊपर लगा लो, जिसमें आपकी इंश्योरेंस हो गई, टिकट हो गया, वीजा हो गया। तो ये सारा कुछ हो गया, लेकिन अगेन, अब यहाँ पे सिर्फ बात यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी ना कि 20 लाख रुपए लग गए, 22 लाख रुपए लग गए। अगर कोई बंदा आता है जिसका यहाँ पे कोई नहीं है, तो अगेन उसको फिर 6-7 लाख रुपए ऊपर भी लाने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, अगेन डेफिनेटली, वो तो आपको इनिशियली बिल्कुल आपके फ्यू मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस, बिकॉज जब तक बैंक अकाउंट खुलता है और चीज़ें स्मूथली रन होती हैं, तो उस टाइम तक आपको खुद को सपोर्ट करना होता है डेफिनेटली। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर कोई नया बंदा आए तो उसके लिए तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे सेटल डाउन होना एज अ स्टूडेंट। क्योंकि अब मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मेरी यहाँ पे फैमिली थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ों में आसानी हुई है, मुझे गाइडेंस मिल गई है, और काफ़ी चीज़ों में मुझे आसानी हुई है। तो अगर कॉस्ट की बात की जाए, तो इनिशियली अगर अभी आजकल में कोई अप्लाई कर रहा है, तो आई थिंक सो कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि यूरो भी चढ़ा होगा अभी आजकल में, हाँ और पाउंड। डेफिनेटली, लाइक जिस टाइम मैं आ रहा था, अगर मैं बात करूँ जर्मनी का, तो मुझे उस टाइम पे याद है 21 लैक्स पाकिस्तानी रुपीज, तो वो लगे थे। और इस टाइम की अगर मैं बात करूँ, अभी जो रिसेंट पिछले 2 दिन पे यूरो के साथ हुआ है, तो इस टाइम पे 32 लैक्स से क्रॉस कर गई है अमाउंट मैं पाकिस्तान। जिस टाइम पे लंदन आ रहा था, उस टाइम पे लंदन पाउंड का जो रेट था वो 260s में चल रहा था, और अब मेरा ख्याल से अब 325 है। तो सी, ये डिफरेंस देखो तो कॉस्ट, काफी ज्यादा कॉस्ट डेफिनेटली में फर्क कॉस्ट पड़ता तो है। पाउंड्स में तो शायद वही कॉस्ट रहेगी, लगभग रहेगी, थोड़ी इंक्रीज होगी, बट देन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करो तो काफी ज्यादा शूट आउट कर जाती है, तो यस। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है सारी टोटल बात। अमाउंट टोटल अमाउंट अगर मैं पूछूं, एक अगर ब्रैकेट दे, तो बिटवीन 30 लाख टू 40 लाख। अगर अभी कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसका 30 to 40 में ही काम होगा। स्टार्ट में तूने बात की ब्लॉक अमाउंट की, तो ये तो हम्म, चीज थी जर्मनी की स्पेसिफिक, जो ब्लॉक अमाउंट मैं सुनता था या देखता था, तो दिस वाज रेलेवेंट टू जर्मनी एंड फ्यू यूरोपियन कंट्रीज। तो जो यूके की ब्लॉक अमाउंट है, वो भी ब्लॉक्ड है, आपने यूके के किसी बैंक में ट्रांसफर करनी है या नहीं, ये वो कॉन्सेप्ट है कि आप पाकिस्तान में बैंक में रखो, एंड देन उसकी आपको स्टेटमेंट बना के 2 महीने की, तो वो सीन है, फिर जब आप अच्छा। आ जाए तो देन वो हम्म, पैसे निकलवा सकते हो पाकिस्तान में।
अच्छा बिल्कुल। अब ब्लॉग अकाउंट का जो यूके का सीन है उसमें ये है कि आप पाकिस्तान में अपने बैंक में पैसे रखवा सकते हो, इधर वो आपका अपने नाम पे हो या आपके गार्डियन के नाम पे हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक, चलो ये तो हाँ। लेकिन अगेन अब आजकल जैसे अनसर्टेनिटी चल रही है ना, तो ये पैसे जो ब्लॉग अकाउंट में आपने रखने होते हैं ये अकॉर्डिंग टू पाउंड्स रखने होते हैं। तो जिस टाइम पे मैंने रखे थे, तो अगर उस टाइम पे पाउंड का रेट उस टाइम पे मेरे ख्याल से 260 चल रहा था, तो मैंने पास जो पाउंड्स बन रहे थे मैंने 280 के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट रखी थी। ठीक। ठीक है। तो हाँ अभी अगर 325 चल रहा है, जिस तरह के लास्ट 2 to 3 डेज में पाउंड 50 रुपए तक बढ़ गया, तो फिर आजकल में कोई स्टेटमेंट बनाएगा तो वो 400 के हिसाब से ही बनाएगा। कोई हाल नहीं। ठीक ठीक ठीक, तो चलो, तो फाइनेंसिस की हो गई और इनिशियली जाने की बात हो गई। देन और जॉब्स, आई डोंट थिंक कि जिस बंदे की फैमिली वहाँ पे है ऑलरेडी उसको और जॉब्स की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ी होगी। बट स्टूडेंट्स होंगे तेरे साथ इस तरह, काफ़ी लोग होंगे अपनी फ्रेटर्निटी के, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे पाकिस्तानी। और जॉब्स का क्या सीन है इनिशियली वहाँ जाके? मींस जहाँ तक मैंने सुना है मार्केट काफ़ी डाइवर्स है यूके में, स्पेशली यूके और कनाडा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो वहाँ पे आपको टेक्निकल जॉब में इनिशियली मतलब इतनी जल्दी डेफिनेटली नहीं मिलती, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम के दौरान स्टूडेंट को अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और जॉब्स की तरफ भी जाना पड़ता है। और ये रियलिटी है डेफिनेटली, यहाँ पे हमने भी की है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो दोस्त वगैरह हैं उनसे सुने हैं। वहाँ पे कल्चर क्या है, मतलब किस टाइप की और जॉब्स हैं इनिशियली स्टूडेंट्स के पास, किस फील्ड? यार यहाँ पे तो ये है ना कि अगर आपको कोई जॉब ना देना तो पिज्जा हट और मैकडोनल्ड्स जॉब दे देगा। या क्योंकि यहाँ पे इन हाउस बहुत किचन सर्विंग या डिलीवरी की बात हो रही है? डिलीवरी पे तो नहीं, लेकिन इन हाउस किचन सर्विंग, लेकिन इसमें ना मल्टीपल चीजें आ जाती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स और पिज्जा हट में, तो वो कह रहे हैं कि मतलब हमसे सब कुछ करवाते हैं। एक दिन अगर मैं किचन में हूँ तो नेक्स्ट डे मेरी शिफ्ट किधर और आ जाती है। लेकिन अगेन अब अगर और जॉब्स आप करते भी हो ना, तो और जॉब्स में ये है कि आपको वीक के 20 आवर्स अलाउड होते हैं। हाँ ऐसा ही है बीइंग ठीक स्टूडेंट। है। तो अगर यहाँ पे तो ये है कि मतलब अगर कोई वेल ऑफ भी है, अच्छा खासा भी है, तो हर कोई जॉब कर रहा हाँ है। एंड ये 20 आवर्स आपको अलाउ है, तो 20 आवर्स अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो इट्स लाइक मेरे ख्याल से 2 दिन में आप 10-10 घंटे की शिफ्ट लगाओ। ये चले 3 घंटे, 3 दिन लगा लो 8 घंटे, 8 घंटे समाओ। नेक्स्ट डे आप 6 घंटे की शिफ्ट लगा लो, 4 घंटे की शिफ्ट लगा लो, 20 घंटे आपको अलाउड होता है। तो उससे मतलब आप पे मेंटल प्रेशर भी नहीं पड़ता, स्टडीज भी आपकी नॉर्मल चलती हैं और सारा कुछ भी नॉर्मल चलता है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के आता है कि आधी फीस मैंने जमा करवा दी है और आधी मैं वहाँ पे कमाऊंगा और फिर पे करूंगा, तो वो फिर ना काफी टफ हो जाता है। क्योंकि लेट सपोज अगर आपको जॉब मिलती है पिज्जा हट मैकडोनल्ड्स में, तो वो आपको 10 या 11 पाउंड पे करते हैं पर आवर के। ठीक है। तो आप अगर 20 आवर्स वीक में काम करते हो, तो मंथ के एंड में आपने अगर 800 पाउंड भी बना लिए, तो 800 पाउंड में आप अपना लिविंग एक्सपेंस पूरा करोगे, अकोमोडेशन का रेंट क्वेश्चन पे दोगे, आ रहा फीसें हूँ, पे इसी करोगे। क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। ये बताओ कि अच्छा, सेमेस्टर। और जॉब्स के हवाले से, और जॉब्स जॉब्स का टॉपिक चल ही रहा है, तो मैं ये यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ नोट की है कि आप जब स्टार्ट में आते हो ना, तो बहुत से लोग इंडीड पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये देखा ना कि यहाँ पे फिजिकल आपकी जो सीवी होती है, पेपर वाली सीवी, हम्म। वो ज़्यादा चलती है। लाइक आप जिस भी एरिया में आए हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आपने क्या करना है कि आप 10 प्रिंट आउट निकालो अपने सीवी के, एंड आप जाओ अपने एरिया में एक्सप्लोर करो। जो आपको अच्छी मतलब हर जगह अपनी आप सीवी ड्रॉप कर लो कि स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो अगर आप 10 सीवी ड्रॉप करते हो, तो आपको अच्छा रिस्पांस जल्दी आ जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोट की है कि अगर आप इंडीड और लिंक्डइन देखो ना, तो लिंक्डइन में एक तो 100 लोगों ने अप्लाई किया होता है। फिर 100 लोगों में से आपकी वो सीवी पहले एक रिक्रूटर के पास जाती है, फिर दूसरे रिक्रूटर के पास जाती है, फिर तीसरे रिक्रूटर के पास जाती है। और अगर आप अपनी पेपर वाली सीवी लेके लेट्स सपोज किसी आईटी फर्म में भी घुस जाते हो और आप मैनेज कर लेते हो कि आपकी सीवी एचआर तक लैंड कर जाए, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका इंटरव्यू भी प्रॉपर कंडक्ट होगा और चांसेस भी हैं कि आप हायर हो जाओ। लेकिन अगेन अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करते हो, तो वो लोग फिर लिंक्डइन और इंडीड चीज़ों को ही प्रेफर करते हैं।
लेकिन अगर आप लोकल, अब मैं जिस तरह इधर हमारा जो लोकल टाउन है यहाँ पे एक आईटी कंपनी है, मैं वहाँ पे लगा हुआ हूँ। सो अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ तो मैंने इनकी इंडीड प्रोफाइल पे भी अप्लाई किया था, एंड आई गेट टू नो कि ये यहाँ पे है। तो मैं एक दिन ऐसे ही सीवी लेके चला गया, एंड द बेस्ट थिंग इज इतनी बड़ी आईटी कंपनी नहीं है, तो जो बॉस था वही बैठा हुआ था, तो काइंड ऑफ लाइक मैंने उसी के साथ कम्युनिकेशन कर ली, कम्युनिकेशन हो गई मेरी उसके साथ। तो ये चीज मैं मैंने वासित यहाँ पे देखी है कि ये इस मामले में हाँ थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं। दूसरा जो आईटी कंपनीज का यहाँ पे सीन है यूरोप में, और आई थिंक जो तू बता रहा है इससे मुझे थोड़ा सा इमेज मिल रहा है यूके का भी, कि वहाँ पे एचआर का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो लोग उनका जो रिक्रूटर्स और एचआर का डिपार्टमेंट है वो उन्होंने आउटसोर्स किया होता है, उन्होंने हायर किए होते हम्म हैं बाहर से। तो वो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसी वजह से अगर आप इंडीड या लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो तो आपकी सीवी 10 बंदों से घूम के फिर एंड में कंपनी के ऐसा ही पास है, आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ। बजाय इसके अगर और आप जो रिक्रूटर्स कंपनी होते हैं उनके पास मे बी वो रेलेवेंट बंदे को सेलेक्ट ना कर सकते हैं। सो या यहाँ पे मैं पोस्ट भी रीड कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि पेपर वाली सीवी का थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जोर है, लेकिन अगेन आपको अच्छी सीवी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली, उसमें तो तू मास्टर है, ग्राफिक डिजाइनर भी था। ठीक ठीक। तो हाँ यार, ये चीज मैंने भी नोटिस की है थोड़ा सा, ये इस मामले में आप ओल्ड स्कूल कह सकते हो या इसको जो भी कहो आप, तो हम्म, चीज आप थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये इस मामले में ओल्ड स्कूल है या वट एवर द वर्ड यू वांट टू यूज, बट ये चीज है कि पेपर बेस्ड सीवी जो होती है दैट इज मोर इफेक्टिव। उसके अलावा मैंने एक चीज नोटिस की थी, मैं पर्सनली जो मैं करता था जॉब एप्लीकेशंस के मामले में, मैं ये करता था कि मैं किसी जॉब पे अप्लाई किया, मैंने किसी कंपनी में जॉब देखी, उस पे अप्लाई किया, देन उस कंपनी को लिंक्डइन पे मैंने सर्च किया, उस कंपनी के अगर तो उनका एचआर डिपार्टमेंट है तो उनके बंदों को मैंने ढूंढ के अप्रोच कर लिया पर्सनली। अदरवाइज उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ढूंढ के मैंने अप्रोच करके डायरेक्टली अपना बता दिया मुद्दा कि यार आई हैव अप्लाइड अगेंस्ट दिस पोस्ट एट योर कंपनी एंड आई वांट यू टू प्लीज कंसीडर माय प्रोफाइल। तो वो तरीका भी है एक, उस पे मेरा प्लान है आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ पे, बट लेट्स सी जब टाइम। बिल्कुल। ये भी वही बात आ गई ना कि मतलब आपने डायरेक्ट जो है ना रेलिवेंट पर्सन को अप्रोच करना है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। इधर आप अपनी सीवी पर्सनली जाके उनको दे देते हो या आपको रेलिवेंट बंदा पता लग जाता है, क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है, आपको स्किल सेट को भी वो बेहतर तरीके से मैयर कर सकता है कि ठीक उसको किस टाइप का बंदा चाहिए। ठीक, मतलब पार्ट टाइम जॉब्स का सीन ओके है वहां पे भी, मतलब ये 20 आवर्स की जॉब मिल हाँ, जाती है। पार्ट टाइम जॉब ना यहाँ पे काइंड ऑफ करना लाइक जरूरी भी है सरवाइव करने के लिए, डेफिनेटली यार, वो मेरा अभी क्योंकि क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। तुम्हारी सेमेस्टर फी की अगर मैं बात करूं, एस्टिमेट क्या है सेमेस्टर फी? अच्छा, मास्टर्स यहाँ पे 2 साल का है। सो लेट सपोज अगर आपकी 15,000 फीस है, ठीक है, तो 7,500 7,500 आपने पहले डिपॉजिट करना है, फिर उसके बाद 7,500 आपने बाद में डिपॉजिट करना है। हर एक बंदे की फीस वेरी करती है। तो इसमें यह है कि अगर आपके लेट सपोज चले 6,000 भी रहते हैं तो 6,000 आपने फिर सबमिट करवाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये गुड सीन है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हो कि यार मेरी जो फीस है, अब डिपेंड करता है, अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ इनका ये बड़ा गुड सीन है, ये फीस आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हैं। दैट्स सो नाइस। अगर आपकी 6,000 या 7,000 है तो आप उनको कह दो कि ये मैं 5 मंथ्स में देना चाहता हूँ, 6 मंथ्स में देना चाहता हूँ, 7 मंथ्स में देना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए इंस्टॉलमेंट्स प्लान बना के सिक्स आपको रिवर्ट कर देते हैं। 6 मंथ्स में 6,000, तो मेरा क्वेश्चन देन यही है नेक्स्ट, कि 6,000 आपको, लेट से 6,000 पर 6 मंथ, देन डेफिनेटली 1,000 पाउंड्स पर मंथ, ठीक है। या के साथ आपके लिविंग एक्सपेंसेस दैट मस्ट बी मोर देन 500 to 600 पाउंड्स, मोर देन दैट आई थिंक सो। तो लाइक तो मैंने स्टार्ट में ये बोला सिक्सटीन था कि हंड्रेड पाउंड 1600 अगर कोई पाउंड्स इस पर मंथ। आई कैन नहीं, इमेजिन, मैंने स्टार्ट लाइक में ये आई कैन इमेजिन हाँ पार्ट टाइम जॉब, नॉन टेक्निकल जॉब्स जो हैं उसकी क्या, मतलब आप कह सकते हो कि अर्निंग क्या है पर मंथ, नॉन टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने मेंशन किया KFC, मैकडोनल्ड्स, दोस काइंड ऑफ जॉब्स। हाँ, तो मैकडोनल्ड्स में अगर आप और जॉब करते हो तो वो आपको 10 पाउंड दे देंगे, सही है। पर तो आवर। हाँ, पर आवर, तो 10 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 200 हो गए वीक के।
200 सिंपली ठीक है। तो 800 800, हाँ। pounds पर तो मंथ। इसलिए मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए मैंने स्टार्ट में ये बोला है कि अगर आप इस माइंड से आ रहे हो कि मैं वहां पे कमाऊंगा, फीसें भी दूंगा, अकोमोडेशन भी मेरी अपनी होगी, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। This was one of the reason के I did not choose UK और the countries के जहाँ पे आपके पास ट्यूशन फी है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको ट्यूशन फी के लिए जॉब करनी है और अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, विच इज़ नॉट आई वुड से अ गुड आइडिया। लेकिन मैं स्ट्रेस यहाँ होता पे ये है। देखता हूँ ना साजिद, कि अगर आपके पास राइट स्किल सेट है ना, तो आपको अच्छी जॉब में लैंड इन आप कर लेते हो। ठीक हम्म, है। अब अगर आप अच्छी जॉब में लैंड इन कर लेते हो, तो अगर आप वीक में 20 घंटे भी काम करते हो, तो आप इजीली 1800 पाउंड तक बना लेते हो मंथली। मंथली। हाँ। तो अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, तो फिर तो आप मतलब रह सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर 1800 2000। तो अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, तो आप इजीली अपना 1000 अगर आप इंस्टॉलमेंट देते हो, तो फिर अकोमोडेशन आपकी हो जाए 300 400 की अकोमोडेशन हो जाए। ज्यादा तो खुली आप बातें नहीं करते होते फिर रिश्तेदार लोन के लिए अप्रोच कर लेंगे तुझे। नहीं, बहरहाल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे जनरल जनरल किस्सा कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक तो हो इसमें यही है ना कि दूसरा ये कि आप और जॉब साथ ही साथ ही और जॉब करना शुरू कर लो, और कीप ऑन अप्लाइंग फॉर बेटर। अभी अगर कोई बंदे की पार्ट टाइम में अगर वो लगा हुआ है 2000 कमा रहा है, तो स्टिल वो बंदा अभी भी लगा होगा बेटर जॉब्स के लिए। हम्म। ठीक है। तो यार वही बात उसमें है कि देयर हाँ, इज ऑलवेज अ रूम अगर मैं फॉर इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट। जर्मनी की बात करूँ ना इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे एक सीन ये है कि इनिशियली आपको अमाउंट ब्लॉक करवानी पड़ती है, दैट इज़ योर सिक्योरिटी, के आप यार आपका पहले साल का एक्सपेंस है ये, और यू आर सिक्योर, के मतलब आप अगर ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने पूरा पूरा साल काम नहीं किया और दे फोकस्ड ऑन देयर डिग्रीज डेफिनेटली, और दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स कि यार हम टेक्निकल जॉब सिक्योर करेंगे और देन वो करेंगे, और जॉब्स की तरफ वो नहीं गए। कुछ को मिल गई कुछ को नहीं मिली, दैट्स अ फुली डिफरेंट स्टोरी। बट ये कि ये सिक्योरिटी थी उनको, उनको एक साल का लेवरेज मिला जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए और स्टडी पे फोकस करने के लिए, जबकि यूके में ऐसा नहीं है। आप आते हो पहले महीने से ही आपको ये टेंशन होती है कि मैंने आज से 4 महीने 5 महीने बाद मैंने अच्छा। फीस भी सबमिट बिल्कुल करवानी। बिल्कुल। अभी फीस की बात हो रही है, तो अभी मेरी यूनिवर्सिटी ने ही राउंड अबाउट लास्ट मंथ कोई 150 बंदा निकाला है ड्यू टू दिस फीस थिंग। तो उसमें ये होता है कि आपकी फीस आ रही है, आप फीस पे नहीं कर रहे, आपको वार्निंग आती है। फिर एक वार्निंग के बाद वो नेक्स्ट वार्निंग जो है, उसमें आपको होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस स्टूडेंट की फीस नहीं पे। तो होम ऑफिस डायरेक्टली आपको जो वीज़ा वो पे सस्पेंड कर देते हैं। क्या होता है देन, वीज़ा लेट से फीस पे नहीं की एंड जैसे तुमने बताया कि 150 स्टूडेंट सस्पेंड हो गए, सस्पेंड। तो व्हाट्स बस द वे उनका फिर ये है कि, फॉरवर्ड? हाँ, फिर होम ऑफिस आपका ये मेक श्योर करता है कि आप दोबारा लंदन ना आ सको। अच्छा, मतलब वापस पाकिस्तान। हाँ, वापस पाकिस्तान आपका वीजा सस्पेंड कर देता है ना। तो वीजा सस्पेंड कर दिया, फिर दो ही तरीके, या तो आप इलीगल रहो, नहीं हाँ, यार, या, हाँ, तो डेफिनेट, वही बात है ना। दैट्स तो नॉट, आई वुडंट सजेस्ट दैट ऑप्शन, सो यस। नहीं, वो तो कोई भी किसी को सजेस्ट नहीं करेगा, हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा ही है, कोई स्टेटस नहीं होता बंदे का फिर। ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है चीज़ें। तो फिर यहाँ पे ये ऑनेस्टली मतलब बहुत बड़ी टेंशन होती है स्टूडेंट्स के सर पे, कि उन्होंने अपनी रिमेनिंग फीस यार देनी होती है। आपकी लाइफ उस चीज़ से इफेक्ट हो रही है ना, कि आपकी स्टडीज इफेक्ट हो रही हैं, आपके रिलेशंस इफेक्ट हो रहे हैं, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा आपके, आई वुड से कि यार मैं एक मेरी फ्रेंड थी तो वो यूके आई थी, नहीं नहीं, तो वो बता रही थी कि उनको यार मतलब अपने रिलेटिव्स को मैसेज करने का टाइम नहीं मिलता था। मैंने अच्छा उनसे मैंने जो चीज़ें सुनी थी ना, तुमने मुझे बताया कि यहाँ पे जो ट्रेंड है जॉब्स का वो है मैकडोनल्ड्स या केएफसी वगैरह, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे जो ट्रेंड है सिक्योरिटी जॉब्स का काफ़ी है, जो स्टूडेंट्स जाते हैं सिक्योरिटी की कोई, सिक्योरिटी पे भी मैं आ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। सिक्योरिटी की काफ़ी तो सारी सिक्योरिटी में भी ना, कंपनीज हैं जो आपको ट्रेन साजिद, सिक्योरिटी करती हैं। में भी यही है ना, कि सिक्योरिटी वाले में भी आपको मिलेंगे 10 पाउंड, 11 पाउंड, 12 पाउंड। ठीक है। लेकिन बात सिक्योरिटी की जॉब ऐसी हैं कि वो ऑफ द रिकॉर्ड आप करते हो। हम्म। आपको जो आवर्स अलॉट होते हैं, आप उससे ज़्यादा आप काम करते हो, जो कि मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा।
क्योंकि वो फिर आपकी लेटर ऑन जब आप पोस्ट वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हो एंड समहाउ अगर होम ऑफिस को पता चल जाए कि आपने वीकली 20 घंटे से ज्यादा काम किया हो तो आपको पोस्ट वर्क वीजा नहीं मिलता। हाँ डेफिनेटली वो अगर चीज़ें तो ट्रैक्ड होती हैं। हम्म अगर आपके फाइनेंशियल्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, या आपके वर्क आवर्स होते हैं, वो तो ट्रैक्ड होते हैं। अल्टीमेटली जब आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हो, या बाय द एंड ऑफ योर पीरियड अगर आप जाते हो, पीआर के लिए जाते हो, तो एग्जैक्टली। पास रिकॉर्ड होता है अच्छा, ऐसा। फिर इसमें दूसरा ये है ना कि अब जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं वो कर रहे हैं कैश इन हैंड, मतलब अपना नेशनल एनआई नंबर पे अब एंड नहीं कर रहे, तो उनके लिए ना दो चीजें जो हैं वो थोड़ी ऑफ हो जाती हैं। उसमें ये होता है कि उनकी टैक्स हिस्ट्री अच्छी नहीं बनी कैश होती। इन हैंड यू मीन इलीगल जॉब्स, राइट? हाँ, इलीगल जॉब्स, मतलब आप लीगल चैनल से आपको पैसे नहीं आ रहे। ठीक है। ऐसा तो उसमें आपको ना दो दो इश्यूज जो हैं वो फेस होते हैं। एक तो ये इशू फेस होता है कि आपकी टैक्स हिस्ट्री नहीं बन रही। ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है। दूसरा उसमें इशू ये है कि ना आप जिसके पास भी जॉब कर रहे हो ना तो उसको पता है कि ये बंदा इलीगली काम कर रहा है। तो वो आपसे ना पैसे आपको पैसे टाइम पे नहीं देगा, कभी कुछ पैसे कम दे देगा एंड आप कुछ नहीं कर सकते। यस, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा बिल्कुल, लेकिन चलो अगर यहाँ पे अब बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे आए हुए हैं कि वो जो दिन की ना 12 12 13 13 घंटे 14 14 घंटे सिक्योरिटी की शिफ्ट करते हैं। तो सिक्योरिटी की का ट्रेंड इस वजह से भी है कि सिक्योरिटी की जितनी भी जॉब्स हैं वो स्ट्रेसफुल नहीं होती, बस आपको एक लोकेशन होती है उस पर बैठना होता है। हाँ, थोड़ा और सा या कभी खड़े कंपैरेटिवली इजी होती है। आउट हम्म लाइक मूवमेंट और उन चीज़ों से थोड़ा सा फटीक उसमें। तो वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो एक दिन काम कर दें तो एक दिन में ही वो, अगर लेट सपोज एक दिन में उन्होंने 12 घंटे काम किया तो 12 घंटे में 120 130 पाउंड बना दिया। तो तो ठीक। 3 4 दिन काम किए, पैसे बना लिए। लेकिन अगेन ऑन द अदर हैंड, तो इसमें ना यहाँ पे फिर बहुत तरीके हैं। अगर आप पैसे बनाने की नीयत से आ रहे हो ना तो फिर तो तरीके बहुत हैं, लेकिन फिर उसमें ना बंदे की मेंटल हेल्थ भी काफी इफेक्ट होती है। आप खुद ही सोचो, आप 15 15 12 12 घंटे ये चीज़ें सिक्योरिटी की कंसीडर शिफ्ट। नहीं करते स्टूडेंट्स, डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे भी काफ़ी सारी हैं, बट आई वुड नेवर सजेस्ट दैट। क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि जब आप जिस पीरियड में आप कोई इलीगल काम कर रहे हो या इस तरह का वो है, तो यहाँ का तो चलो ब्लॉक अकाउंट सपोर्ट कर रही है। यूके में पहला क्वेश्चन ये होगा बाय द टाइम ऑफ गोइंग फॉर पीआर, वो ये पूछेंगे हम्म कि यार इस टाइम पे तुम कोई काम नहीं कर रहे थे, तुम्हारा टैक्स नहीं आ रहा, तुम फाइनेंसिस कहाँ से मैनेज कर रहे थे? क्योंकि अल्टीमेटली उस टाइम पे तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं बन रही, तुम्हारे बैंक में भी पैसे इन आउट नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन यही आएगा डेफिनेटली कि तुम फाइनेंसिस कहाँ से मैनेज कर रहे थे इस टाइम पे, और बिल्कुल सही बात है। देन आप ब्लैंक होते हो उस खैर, स्टडी के बाद जो पोस्ट वर्क वीजा है ना, तो उसकी तो बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो है डिग्री कंप्लीट की हो, दैट्स इट। डिग्री कंप्लीट की। और दूसरा, काफी लोगों का इशू इस वजह से बन रहा है कि अगर उन्होंने हफ्ते में 20 घंटे से ज्यादा काम किया हुआ है तो वो उस पर थोड़ा इशू बना लेते हैं। बाकी मेरे मेरे सुनने के मुताबिक कुछ ऐसी मेन वजह नहीं है जिसकी वजह से पोस्ट वर्क वीजा जो है लोगों का रिजेक्ट हुआ हो। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात तुमने की, तो हम्म कितने टाइम का मिलता है? लेट्स से तुम्हारा मास्टर्स 1 साल का है, राइट? बताया। हम्म 1 साल में मास्टर्स कर लिया, लेट्स से खींच के 1.5 साल हो गया। देन पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कितने टाइम का मिलेगा? अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। मेरी डिग्री अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी सितंबर से, तब सितंबर में भी नहीं, सेमेस्टर तो पहला ख़त्म हो जाएगा, डिसर्टेशन सबमिट करवानी होती है तो बात आ जाती है सितंबर तक। तो सितंबर से लेकर जनवरी तक मेरा ये स्टूडेंट वीज़ा होता है। ठीक है। तो सितंबर। ड्यूरिंग दिस हाँ, ड्यूरिंग स्टूडेंट वीजा होगा, ऐसा ही है। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर लो। अगर आप पीएसडब्ल्यू के लिए नहीं अप्लाई कर रहे तो आप अपने लिए स्पॉन्सर्ड जॉब देख लो। ठीक ठीक तो ठीक। ये दो तरीके हैं। फिर अगर आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर लेती हो तो पीएसडब्ल्यू की मेरे ख्याल से 2000 पाउंड फीस है। अच्छा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की फीस भी है? बिल्कुल 2000 पाउंड उसकी फीस है। क्यों, जर्मनी में नहीं है? नहीं यार, यहाँ पे तो मतलब जहाँ तक होगी, मुझे पता पता है, नहीं। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, हम यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिग्री को ही खींचते हैं, और इन दैट टाइम, इन द मीन वाइल, वो अपने लिए जॉब सिक्योर कर लेते हैं। जॉब सिक्योर होती है तो वो साथ में ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और जब आपके पास फुल टाइम जॉब होती है, ब्लू कार्ड पे आप अप्लाई करो, तो जस्ट आपकी जो कार्ड फी होती है, €100, आई थिंक, मे बी 110 तक अभी जा चुकी हो, तो वो है।
बट वो 110 यूरोज या 100 यूरोज जो हैं वो उसके नहीं है। वो अगर आप बीइंग स्टूडेंट भी आते हो, जो आपका स्टूडेंट हाउस वाइज उसको कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होता है बेसिकली वो, वो उसके भी हैं। तो दैट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और सच। अच्छा, तो यहाँ पे ये है कि फिर आप पोस्ट वर्क स्टूडेंट वीजा तो कितने दो टाइम हजार का पाउंड है उसकी पोस्ट फीस है। स्टडी, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा या पीएसडब्ल्यू आई? हाँ, कितने टाइम? पीएसडब्ल्यू, पीएसडब्ल्यू की ड्यूरेशन होती है 2 साल की। तो 2 साल में फिर आपने अपने लिए जॉब सिक्योर करनी होती है, कोई स्पॉन्सर्ड जॉब हो, अगर आप फर्दर आप रहना चाह रहे हो, जॉब सर्च कर लो। फिर अक्सर यहाँ पे लोग ये करते हैं कि जॉब 2 साल में जॉब जॉब। जॉब बोले तो जॉब, टेक्निकल जॉब, अपनी फील्ड की जॉब, नॉट और जॉब और समथिंग लाइक दैट। अभी बाज लोग इस तरह भी है ना कि अगर वो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग कर रहे हैं तो वो मे भी शायद सेल्स में चले जाते हैं। डेफिनेटली लेकिन टेक्निकल जॉब। स्पॉन्सर, हाँ, तो हाँ, लेकिन फिर ना वहाँ पे स्पॉन्सर्ड जॉब का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन मतलब और समटाइम्स और जॉब्स में भी आपको, अब जिस तरह आजकल आपने सुना हुआ केरल, केरल वीजा वगैरह काफी ज्यादा यूके में आ रहा है, तो आप अगर वो जॉब करते हो तो उसमें भी अक्सर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। ठीक। लेकिन अगेन फिर ना इसके बाद भी आप पे है कि अगर आपने चलो 2 साल आपने यहाँ पे काम कर लिया, अच्छा खासा पैसा बनाया, उबर चलाइए, वट एवर जो आपने कर लिया, ठीक है, आपने टेक्निकल जॉब से ज्यादा पैसा बना लिया, फिर आप ये कर सकते हो कि अपना वीजा परचेज कर लो। अच्छा, वीजा परचेज का ऑप्शन भी है? वीजा परचेज का ये ऑप्शन है कि यहाँ पे मतलब कंपनीज होती हैं, तो वो आपको मतलब जॉब तो बेसिकली होती नहीं है, तो वो लेकिन आपको ऑफर कर देती हैं कि हमसे आप वीज़ा परचेज कर लो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगेन वो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर उससे ना आप उस बंदे या उस कंपनी के अंडर आ जाते हो। पाउंड हो जाते हो चीजों में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये और तकरीबन फिर दूसरा, और जो आ रहे हैं कितने तक? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा। मैंने जस्ट सुना है कि इस तरह होता है। दूसरा हाँ। ये है कि अगर आपको 2 साल बाद, आपको 2 साल बाद जो है नहीं मिलती कोई स्पॉन्सर्ड जॉब, तो आप बेस्ट रूट तरीका ये है कि आप फिर किसी डिग्री में एडमिशन ले लो। हाँ ठीक है, जुगाड़। कीप इट गोइंग। हाँ, ऑन टू तो द वही नेक्स्ट जॉब। जर्मनी वाली, हाँ, जर्मनी वाली बात होगी ना कि डिग्री खींचते जाओ। नेक्स्ट लेकिन अब क्वेश्चन। यहाँ पे ये है कि आपने अपनी डिग्री जो है ना लाजमी पूरी करनी है ठीक। विद इन द टाइम फ्रेम। अगर डिग्री नहीं पूरी होगी तो आपको पोस्ट वर्क वीजा नहीं मिलेगा। विद इन द टाइम फ्रेम मीन्स कि अगर 1 साल की डिग्री है और अगर वो 1.5 साल पे गई तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं, अच्छा, यहाँ पे भी है ना कि लेट सपोज आपके 8 सब्जेक्ट हैं, सही है, तो अगर ठीक। पहले सेमेस्टर में आपने कोई सब्जेक्ट फेल कर दिया तो वो आप सेकंड सेमेस्टर में रीटेक कर सकते हो, ठीक ठीक। है। लेकिन अगर सेकंड सेमेस्टर में आपने कोई सब्जेक्ट फेल कर दिया हम्म। तो आपकी डिग्री गई, तो आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगा। ठीक हो गया। स्ट्रेंज। स्ट्रेंज। समझ आ गए। उसमें भी तरीका ये है कि फिर अगर आप समझो मैनेज कर लेते हो अपना वीजा और पेपर रीटेक कर लेते हो तो फिर आपको मास्टर्स मिल जाएगा। ठीक लेकिन ठीक। अगेन वो वीजा कांस्टेंट होता है ना, आपका वीजा खत्म होने वाला होता है और आपके क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होते, तो जब आपके क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होते तो वो मास्टर्स की डिग्री रहती नहीं है, तो काइंड ऑफ लाइक डिप्लोमा मिल जाता है आपको। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके बासित, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेटल होना वहां पे मींस के डिग्री हो गई आप, बल्कि चलो हाँ पहले हम बात करे थे उसी चीज पे, सेटल होने पे ही बात करे थे। अच्छा, Okay. इससे पहले मुझे जर्मनी की तरफ से भी बता दे कि जर्मनी में और जॉब्स का क्या सीन है, मतलब अगर कोई बंदा आते तो अ, आते साथ ही अकोमोडेशन वो कैसे ढूंढे, क्योंकि अकोमोडेशन, सबसे मुश्किल चीज जो क्वेश्चन क्योंकि अकोमोडेशन चीज में मिस कर गया है तुझसे पूछना, वो तूने पूछ ली और अच्छा किया। चल दोनों साइड से सबसे मुश्किल चीज इवन नहीं, जॉब। पहले और जॉब से, पहले और जॉब पे आए फिर अकोमोडेशन पे आते हैं। यार ऑड जॉब्स जब आप आते हो, जर्मनी जब आप आते हो अच्छा, तो इसमें सॉरी फिर काट रहा हूँ। अब मुझे ये बता कि मतलब जर्मनी में आप नॉर्मल जॉब इजीली सिक्योर कर सकते हो कि नहीं, आपको और जॉब लाजमी करनी पड़ेगी, और किस टाइप की और जॉब्स होती हैं, और आप मंथली कितना कमा लेते हो और जॉब से। मेरे हिसाब से पाउंड और यूरो में इतना कोई फर्क नहीं है, मैं ख्याल से 100 150 कोई इस तरह, मतलब ओवरऑल फिगर में फर्क आता होगा। यार बेसिकली तो बासित सीन ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट होता है वो आपकी ब्लॉक अमाउंट होती है। 2-3 महीने अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे
तो वो आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो आपको वो एक तो स्ट्रेसफुल वो नहीं बनता कि यार नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंस आपके पास नहीं है, या वो चीज़ वो है। हम्म। और जॉब अगर आप चाहो तो मोस्टली स्टूडेंट्स को हार्डली सेकेंड मंथ में मिल जाती है। वो पहला मंथ अगर मिस होता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि जर्मन्स इस मामले में थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं। ये इनका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। ये लोग डिजिटल कम हैं और पेपर वर्क पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, मेल बॉक्सेस और लेटर्स और वो चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा है पेपर वर्क। यार आप आते हो, आपको बैंक अकाउंट बनवाना है, आपको अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेके सिटी रजिस्ट्रेशन जाना है, देन आपको टैक्स आईडी मिलेगी। ये सारी चीज़ें करके इसमें, अगर बेस्ट केस अगर आपको एकोमोडेशन पाकिस्तान में होते हुए मिली है, तो देन बेस्ट केस में आपको 1 से 2 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं ये सारी चीज़ें करने में। 1-2 हफ्ते लग गए मतलब महीना मजाक मजाक में निकल गया। देन जब आप और जॉब्स पे अप्लाई करते हो और ये, तो 1 महीना लग जाता है आराम से, 2 महीने पे भी पहुंच जाता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं आया था अक्टूबर में। हाँ, मैं अक्टूबर में आया था और तकरीबन नवंबर मिड से, मैं अक्टूबर, हाँ अक्टूबर 25 को आया था मैं, और नवंबर 20 से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी अमेजोन में। और जॉब थी डेफिनेटली सॉर्टिंग एसोसिएट, वो थोड़ा सा फैंसी नाम उसको देते हैं जो होता है अंग्रेज़ों का। वो था, मजदूरी थी बेसिकली। तो वो की। और बेसिक जो मेन और जॉब्स जो जर्मनी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे तुमने बताया यूके में आपके पास हो गई ये मैकडोनल्ड्स, केएफसी और उस टाइप की हो गई, या सिक्योरिटी की जॉब्स हो गई। यहाँ पे जो मेन और जॉब्स हैं वो हैं रेस्टोरेंट्स की हो गई, या डिलीवरी की हो गई। उसमें आपके पास लिफ्रांडो आ गया, या बाकी कुछ ब्रांड्स हैं। डिलीवरी, रेस्टोरेंट्स एंड अमेजोन। अमेजोन सबसे बड़ा वो है, उसमें ये है कि वो पे भी आपको थोड़ा सा अच्छा करता है। तकरीबन काफ़ी सारे शहरों में अमेजोन की वो हैं ब्रांचेस, वेयर हाउसेज और सारा कुछ। तो और जॉब्स में जो पेमेंट है ये भी आवरली बेसिस पे होती है, और क्या मतलब एवरेज क्या और जॉब्स पे कर रही हाँ, है आवरली और पे? जॉब्स में फिर हमारे पास अगर आप बात करो तो स्टूडेंट को यहाँ पे 4 आवर्स, वही जो यूके का रूल है, 4 आवर्स ही अलाउ होता है पर डे। तो और जॉब्स में दो आपके पास कैटेगरीज होती हैं। एक आप मिनी जॉब कर सकते हो, दैट इज 2 आवर्स पर डे, वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा आपके पास होता है 4 आवर्स पर डे का, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट लो आप, या फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। उसमें ये होता है कि अगर आप तो फुल टाइम करते हो तो 6 महीने कर सकते हो साल में। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो देन पूरा साल आप करते रहो 4-4 घंटे पर डे। तो ये सीन। अच्छा, पेमेंट, सॉरी पेमेंट बार बार मैं मिस कर रहा हूँ। पेमेंट यार डिपेंड करता है। एक तो यूरोप की जो, यूरोप नहीं आई वुड से, जर्मनी की जो अच्छी बात ये है कि इन्होंने स्टैंडर्ड रेट्स रखे हुए हैं इस टाइम पे। स्टैंडर्ड रेट जो चल रहा है, जब मैं आया था तब 10 यूरोस था, इस टाइम पे 12 और 12 पॉइंट समथिंग यूरोस पर आवर और जॉब्स का है। तो अमेजोन सेम मतलब थोड़ा सा पाउंड में आउटरनेट 10 पाउंड है। हो गया। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तकरीबन ये चल रहा है। हाँ ये होता है कि अगर चाहे वो और जॉब आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो, चाहे वो अमेजोन में कर रहे हो, चाहे आप किसी डिलीवरी कंपनी में कर रहे हो, तो लगभग वही 10 से 12 के बीच में आपका होगा, आपकी अर्निंग पर आवर होगी। बट उसमें अच्छी बात ये है कि आपका हाँ जर्मनी की अच्छी बात वो ये है कि आपका एजुकेशनल एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे। मोस्टली यूनिवर्सिटी, हम्म। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री हैं। एक जो अच्छी बात ये थी जिसकी बेस पे मैंने चूज़ किया इसको, वो ये थी कि हम्म। आपका एजुकेशनल एक्सपेंस नहीं है। आप जो थोड़े बहुत, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 50 से 70 हज़ार आप देते हो, दैट इज़ फॉर द हम्म। फैसिलिटी जो कि आपको यूनिवर्सिटी दे रही है। लाइक हमें यूनिवर्सिटी कार्ड गिवन है, उसकी बेस पे हम पूरे शहर में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हो गई, या यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, उस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हमें गिवन है, उनके लिए, उसके लिए हम वो यूनिवर्सिटी को फंड देते हैं। उसका एक नाम होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो चीज़ हम देते हैं। दैट इज़ 50 to 70 थाउजेंड PKR, ओके। 50 यूरोज। कुछ यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। बट देन अगेन लिविंग एक्सपेंसेस, जो लेट्स से अगर 10 यूरोज पर, 10 to 12 यूरोज पर डे आप कमा रहे हो, तो अराउंड 800 तक आपका पहुंच जाता है मंथली। मंथली। उसमें है कि आपका जो लिविंग एक्सपेंस है मंथली, वो मैनेज हो जाता है इजीली। ओके। हाँ, वो उसके लिए आपको मतलब, अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो चिल सीन है। आप मतलब लिविंग एक्सपेंस मैनेज हो जाता है, स्टडी की टेंशन नहीं होती, स्टूडेंट स्ट्रेसफुल स्टडी, स्ट्रेसलेस स्टडी कर सकते हैं। तो ये सीन है यहाँ। और अगर आपने फील्ड जॉब करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया है?
फील्ड जॉब यहाँ तो सिक्योर कैसे कर सकते हैं, फील्ड और क्या वो जॉब सिक्योर मेरा करना अपना आसान है? पर्सनल एक्सपीरियंस रहा राइट फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो ये था कि मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, और मैं बाकियों को भी, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करता हूँ कि लिंक्डइन को यूज़ करें, उसके पोटेंशियल को जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करें। तुम्हें याद होगा हमारे सर अहमद हसन बैचलर्स के टाइम पे बताते थे कि यार लिंक्डइन को एक्सप्लोर करो, और कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो वो चीज़ बाद में मैंने रियलाइज़ की कि नहीं यार, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लिंक्डइन में, अगर उसको यूज़ किया जाए ठीक तरीके से, और मैं कर रहा हूँ। मेरी जो लास्ट दो जॉब्स पाकिस्तान में और देन यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे तो अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ में मुझे जॉब मिल गई थी। और ऐसा ही है, मैं उसके बाद मैंने कुछ सेशंस में एज अ स्पीकर मुझे बुलाया गया उस चीज़ पे, और कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने उस चीज़ पे गाइड किया, उनको उन्होंने जॉब सिक्योर की थोड़े से टाइम में ही। तो हाँ, लिंक्डइन को मैं प्रेफर करता हूँ खुद। मैंने इवन बाकी प्रो जो जॉब सर्च इंजन, जो जॉब साइट्स हैं, इंडीड हो गई या बाकी काफ़ी सारी, जिंग यहाँ पे यूज़ हो रही है, उन पे मैंने प्रोफाइल भी नहीं बनाई अपनी। तो लिंक्डइन को ही ओके। यूज़ किया हमेशा से, और उसी से हो गई। हाँ, आपने कहा कि कितने टाइम में, वो अगर आपको लैंग्वेज आ रही है तो आपके लेट से अगर 10% चांस, 100% चांसेस हैं, तो विद इंग्लिश लैंग्वेज आपके शायद 40 to 50% चांसेस होंगे। क्योंकि लैंग्वेज डेफिनेटली आपको अपने कोलीग से भी इंटरेक्ट करना होता है। जर्मनी में ये है कि कम बोली जाती है इंग्लिश, आई वुड से कम बोली जाती है। तो हैं इंग्लिश बेस्ड हम्म। जॉब्स हैं। मैं अभी करंटली जो मैं जॉब कर रहा हूँ दैट इज़ इंग्लिश बेस्ड। मेरे साथ का जो मेरा ग्रुप है उसमें मतलब 5 से 6 लड़के जॉब्स कर रहे हैं, फुल टाइम पे कर रहे हैं और पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, और दोज आर लाइक इंग्लिश बेस्ड जॉब्स। और ठीक है, इजीली मिल गई थी राइट इन द फर्स्ट और सेकंड मंथ। तो सफ़र भी किया है काफ़ी सारे सीनियर्स। तो ऐसा था कि उनको मतलब 2-2 साल तक भी जॉब्स नहीं मिली। और कुछ जगह पे मैं कहूँगा कि अपनी अप्रोचेज, और कुछ जगह पे लक और काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट मिल जाती है, अच्छा सीन है। सेटलमेंट के हवाले से कैसा है जर्मनी? हाँ, सेटलमेंट, तो जो चीज़ें मैंने तुमसे सुनी हैं यूके की, तो उससे काफ़ी बेहतर है सीन। उससे बेहतर ऐसा सीन है कि आप आते हो स्टूडेंट स्टूडेंट वीज़ा पे, अगर आप आते हो, लेट्स से मैं स्टूडेंट वीज़ा पे लैंड किया, कुछ दोस्तों ने किया ऐसा, स्टूडेंट वीज़ा पे आए, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली फुल टाइम जॉब की, उन्होंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी, विद दैट ब्लू कार्ड पे अप्लाई कर दिया। जर्मनी का ये सीन है कि अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो आप ब्लू कार्ड पे अप्लाई कर दो। ब्लू कार्ड पे आपकी थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं चीज़ों में। दैट इज़ योर जॉब वीज़ा। बेसिकली जॉब आप कर रहे हो और स्टडी आप साथ में पार्ट टाइम पे कर रहे हो, स्टडी भी चल रही है, जॉब भी चल रही है। बट उसके थोड़े से, जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि नुकसान है उस चीज़ का, स्टूडेंट वीज़ा में ये है कि अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो जब तक आपकी डिग्री चल रही है आप यहीं पे हो, चिल सीन है। लेकिन अगर आप ब्लू कार्ड पे चले गए हो और आपकी जॉब चली जाती है, लेट से खुदा ना खास्ता, तो देन आपके पास 3 मंथ्स का पीरियड होता है, उसमें आपको जॉब सिक्योर करनी होती है लाजमी। अगर आप नहीं करते हो तो देन फिर एम्बेसी का और ऑसलैंडर बे होर्डे फॉरेन ऑफिस जिसको कहते हैं, तो उसकी मर्जी है वो आपको क्या करे, एक्सटेंशन दे ना दे या भेजे। ओके। ये हो गया। और दूसरी बात, हाँ, सेटलमेंट की, ब्लू कार्ड होता है आपका। ब्लू कार्ड इज बेसिकली फॉर 21 मंथ पीरियड। 21 मंथ तक आपको ब्लू कार्ड पे रखते हैं। आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्रोबेशन फॉर नेशनैलिटी, वो चीज़ हो सकती है, प्रोबेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस, इस तरह का सीन होता है। 21 मंथ के बाद आपका केस देखा जाता है। हाँ, अगर 21 मंथ एंड देन B1 लेवल ऑफ जर्मन आपके पास है, तो देन वो आपको वीज़ा, E1 लेवल क्या चीज़ है? लैंग्वेज का? जैसे आपके पास आइल्स में आ जाते हैं, आइल्स में जैसे आपके अच्छा अच्छा पास अच्छा, आइल्स समझ गया। हैं, तो इसी तरह जर्मन में A1, A2, B1, B2, C1, C2 ऐसे लेवल्स हैं। तो ओह। आपके पास B1 लेवल ऑफ जर्मन है तो आफ्टर 21 मंथ्स आपको वो PR देते हैं। एंड अगर आपके पास वो नहीं है देन आफ्टर 31 मंथ्स तो वो आपको देते हैं PR एंड देन पासपोर्ट एंड दोस थिंग्स। बट ठीक है, इजी सीन है, मिल जाता है अगर आप कोई गलत चीज़ ना करो। तो वो तो हम्म। डेफिनेटली वहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि चीज़ें आपकी फाइल उनके सामने खुली होगी, आपको पूछेंगे हाँ भाई फलाना टाइम पे ये काम किया था, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी तरह। तो यहाँ पे भी यही है कि
आप जो है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। इवन यहाँ पे अगर आप किसी ट्राम में या बस में भी ट्रैवल करो तो मेक श्योर आप टिकट बाय करो। अगर टिकट बाय नहीं ये करते, चीज इवन आपने फाइन। मोबाइल में हाँ। सुना है कि जाती हैं ये चीजें, छोटे छोटे स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि ये बहुत छोटी चीज है, हम्म, कुछ नहीं होता, और ये वो पकड़े जाते हैं, फाइन पे कर देते हैं। उनको नहीं पता हम्म, होता कि जब वो जाएंगे वीजा एक्सटेंशन के लिए तो वहाँ फाइल में ये फाइन भी पड़ा होगा कि ये काम भी आपने किया था। बिल्कुल इसी तरह। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, लास्ट थिंग, अकोमोडेशन। हाँ, एकोमोडेशन पूछा तुमने, वो मैं स्किप कर गया। एकोमोडेशन यार बहुत हार्ड सीन है, मुश्किल है थ्रू आउट जर्मनी। अगर आप देखो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, मैं पीएसए को हेड कर रहा था, पीएसए कॉब्लेंस को। तो स्टूडेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन में ये है कि यार बहुत टाइम लग जाता है। इनिशियली ये होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं टेम्प्रेरी रेजिडेंस पे, टेम्प्रेरी अकोमोडेशन पे, कि लेट से कोई स्टूडेंट पाकिस्तान जा रहा है या कहीं मूव आउट हुआ हुआ है, उसका रूम खाली है, तो वो टेम्प्रेरी उसको एज अ गेस्ट रख लिया थोड़े पैसों में। बट वो रजिस्ट्रेशन और वो नहीं होती उस चीज़ में। स्टूडेंट यहाँ आता है, वो टेम्प्रेरी अकोमोडेशन उसने 1 महीना 10 दिन के लिए ली, और उस ड्यूरेशन में वो अपने लिए यहाँ पे परमानेंट अकोमोडेशन देखते हैं। तो लैंडलॉर्ड्स का ये सीन होता है कि उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि जिनको हम घर दे रहे हैं रेंट पे, तो उनसे हम पर्सनली मिलें और फिर वही क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। और इनका ये सी पाकिस्तान में तो ये होता है कि आपको मिल जाता है टेनेंट और आप दे देते हो उसको। यहाँ पे एक एक लैंडलॉर्ड वो वो जॉब इंटरव्यूज वाला सीन होता है कि 10 बंदे बुलाए हुए हैं और सबको दिखा रहा है घर, और टाइम फिक्स किया हुआ है, अपॉइंटमेंट्स रखी हुई हैं कि ये आएगा, और आपको मीन्स के यार प्रॉपर आपको वो लिखना पड़ता अच्छा, है अपने बारे में कि मैं ये कर समझ रहा गया। हूँ, तो वो सीन है थोड़ा तो सा। अकोमोडेशन कैसे सर्च करनी चाहिए? अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको क्या अकोमोडेशन रिकमेंड करेंगे? यहाँ पे यार वेबसाइट हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको कहते हैं वेगे गेसूज है, ईबे क्लाइनेंजाइगन है। वेगे बेसिकली WG, जिसको हम इंग्लिश में WG और जर्मन में वेगे। तो वो चीज़ है। दो वो ऐप्स हैं, और कुछ एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जिससे आपको मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है। बट डेफिनेटली वहाँ आपको इंट्रोडक्शन और वो अपना सेंड करना पड़ता है, सारी अपनी प्रोफाइल। एंड देन रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है। प्रेफर ये उस स्टूडेंट को करते हैं जो ऑलरेडी जर्मनी आ चुका हो। तो मेरा मशवरा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही होता है कि आप यहाँ पे आओ, कोई टेम्प्रेरी रेजिडेंस लो, एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम आप परमानेंट रेजिडेंस सर्च करो। क्योंकि रेजिडेंस की बेस पे ही हम्म, आपका सारा, लाइक आप जॉब नहीं कर सकते अगर आपके पास रेजिडेंस है, रेजिडेंस नहीं है। बैंक अकाउंट क्रिएशन में इश्यूज आते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया कि डॉक्यूमेंटेशन पे काफ़ी यहाँ पे फोकस है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घर आपके मेल बॉक्स में आने होते हैं, तो जब एड्रेस ही नहीं है तो मेल बॉक्स कहाँ से आएगा? तो इट्स इम्पोर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ पे भी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। यहाँ पे भी मैं जब आया तो वही जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, बैंक अकाउंट है, तो वो वही पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम। आपके घर मेल हाँ, आएगी, ये थोड़ा मेल सा पे ना कोड होगा, फिर और उन दूसरा। चीज़ों पे तो ये थोड़ा आपका प्रोसेस काफी स्लो सा। कर देते हैं। और अकोमोडेशन का मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अकोमोडेशन लंदन में भी काफी मुश्किल है। यार लंदन में तो बहुत मैं मुश्किल है। पिछले दिनों ऑनलाइन एक रूम देख रहा था, छोटा सा रूम था, और कोई 600 700 पाउंड्स में। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें ये है ना कि साजिद, यहाँ पे इतने फॉरेन स्टूडेंट्स आ गए हैं ना, इतने फॉरेन स्टूडेंट्स आ गए ना, इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा क्राइटेरिया बहुत आसान कर दिया। अब ये जो यूके का वीज़ा है, ये बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, आपके पॉइंट्स मिलेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूज हो नहीं रहे। तो हम्म। ये दूसरा अकोमोडेशन के हवाले से ये है ना कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि जितनी भी ऑनलाइन आपको ये अकोमोडेशंस की साइट्स मिलती हैं, इन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी वेबसाइट जहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकूं, अगर आप पाकिस्तान से बुक कर रहे हो, आपने पर्सनली आके अकोमोडेशन देखी नहीं है, तो और आप उसको बुक कर लो, तो काफी ज्यादा स्कैम्स भी होते हैं। काफी लाइक सारे देयर आर स्कैम्स डिफरेंट। स्कैम्स मैंने यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के साथ होते देखे हैं कि पैसे दिखाते ट्रांसफर आपको कुछ और। हैं और हाँ, ऐसा। दिखाते आपको कुछ और चीज है, फिर आप बुक कर लेते हो, फिर वो इवन आपको अक्सर मैंने ब्लैकमेल ऐसा करते देखा है कि वो एकोमोडेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती जिसके आप पैसे दे हैं। चुके होते हो। एग्जैक्टली exactly। और वर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि पिक्चर्स कुछ और दिखाई होती हैं और आपको एंड टाइम पे आके कोई और जगह दे देते हैं। हाँ, फिर देन आप क्लेम करो कि, फिर आप हाँ, कर नहीं सकते हो फिर कुछ आप उनको नहीं। क्लेम करो तो ये लोग फिर मतलब होते भी, इनको प्रॉपर गेमों का पता होता है कि हम पुलिस बुला लेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पेड फॉर इट एंड यू काफी कैन सारी नॉट चीजें मूव होती नाउ ना।
तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे मसले हैं। दूसरा ये है कि अगर आप अपना कहते हो कि चलो मैं अपना अपना मैं खुद ही फ्लैट रेंट आउट करना चाहता हूँ, तो जो फ्रेश स्टूडेंट आता है तो उसको तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये वही बात है कि लैंडलॉर्ड आपके साथ मीटिंग करता है। तो हाँ, वो लैंडलॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटस देखेगा, आपका रिकॉर्ड देखेगा तो हाँ फाइनेंशियल स्टेटस, तो जो नया बंदा आता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस होते नहीं है। इसके पास तो पैसे अगेन, नहीं है, रेंट कहाँ से देगा मुझे। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटस से ये मेरा मुराद है कि वो यूके में भी आया होता है ना, उसकी टैक्स हिस्ट्री होती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हुए हैं कि वो गवर्नमेंट को क्लेम कर देते हैं कि हमारे पास पैसे हैं नहीं, फिर गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड को कहती है कि आप इससे नेक्स्ट 6 मंथ्स का रेंट ना लो, तो अगेन लैंडलॉर्ड पकड़ा जाता है। हाँ सो ऐसा। या ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर न्यू कोई भी बंदा आ रहा है तो वो टेम्परेरी रेजिडेंस देखे पहले, ऐसा ही है। एयरबीएनबी पे कोई अपार्टमेंट देख ले, या काइंड ऑफ लाइक हाँ, सच स्टूडेंट थिंग्स फॉर। कम्युनिटीज होती हैं यार, स्टूडेंट कम्युनिटीज लोकल आपकी लंदन की स्टूडेंट कम्युनिटी होगी कोई ना कोई जिससे आप अप्रोच कर सकते हो। दूसरा ये कि लंदन, अगर यूके कोई आता भी है तो लंदन बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है। अगर आप बर्मिंघम वगैरह देखते हैं तो वो स्टूडेंट फिर कम काफ़ी लोग ज़्यादा। प्रेफर करते हैं, तुम्हारी तो आई थिंक फैमिली लंदन में है। हाँ मेरी फैमिली लंदन में है, अकोमोडेशन का मुझे, मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ। नहीं ठीक है, फिर हम्म, तो इजी सीन है, अदरवाइज लंदन में अकोमोडेशन इज लाइक हेल्प। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हम्म, बहुत अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज है। मतलब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हर कोई इंडिपेंडेंट है। मतलब आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो कि आपके पास बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली, मतलब मैं, मतलब यहाँ से इस घर से कहीं भी मैं जा सकता हूँ। मतलब आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। हाँ वो चीज़ मैं यहाँ की भी अप्रिशिएट हाँ, और करूँगा, दूसरा तो नहीं काफी होता ज्यादा बट। चीजें ऑर्गेनाइज हैं। गूगल मैप्स इतने अपडेटेड आपको बता रहे हैं कि 2 मिनट में ये वाली बस आएगी, 2 मिनट में ये वाली ट्रेन हाँ आएगी। ऐसा ही है बिल्कुल, जो बस और मैं ट्रांसपोर्ट लिटरली, जर्मनी का भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, मींस लास्ट अभी। मतलब अगर मतलब अगर लिखा हुआ है 341 पे ये बस आएगी, तो एग्जैक्टली 342 भी नहीं, 341 को बस आई होती है। ठीक ठीक, नहीं ये चीज़ें तो डेफिनेटली हम्म, यहाँ पे भी बहुत चिल सीन है इस मामले में। हम थोड़ा सा लैग करते हैं, पाकिस्तानी जो यहाँ हम्म, पे आते हैं उनका टाइमिंग का थोड़ा सा हाँ, होता है। बट जर्मन्स के बारे में फेमस है कि वो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये सीन्स हो चुके हैं हमारे साथ काफ़ी अक्सर जगह पे, एक आध जगह पे स्टूडेंट सिर्फ कोई 2-3 मिनट लेट हुआ तो सामने जो बंदी खड़ी थी वो आगे से कहती है यू आर 3 मिनट्स लेट। तो अक्सर ऐसा भी हुआ कि 1-2 मिनट लेट होते हैं, वो सामने वाला बंदा जा चुका होता है। तो इतना वो हाँ, पंक्चुअलिटी उनकी है डेफिनेटली। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो जर्मनी का भी यस वन ऑफ द बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है, दूर कोई टाउन होता है जैसे मतलब अंदरून सिंध जाना है, और वहां तक आपको बस लेके जाएगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूरी बस में मैं अकेला बंदा बैठा हुआ होता हूँ और वो हम्म, दूसरे सिटी जा रही होती है बस, और बस चल रही है। ये भी नहीं कि यार आज लेट से मंडे है तो मंडे को आवाम कम होती है तो ये बसेस कम चलाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। जो जिस टाइम बस आनी है वो आएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली, ये यहाँ पे भी यही सारा सिस्टम है। सही है, सही। तो यही सीन है, चलो अच्छा लगा बात करके। आई होप कि इस अच्छा लगा बात करी करके, मुझे भी अच्छा लगा। मिलेंगी उम्मीद करता हूँ मैं आप जल्दी, उम्मीद करता हूँ आप जल्दी लंदन चक्कर लगाएंगे। हम तो कह कह मैं के थक उम्मीद गए कर हैं। रहा हूँ कि आप जल्दी ये जर्मनी चक्कर लगाएंगे, और जर्मनी के साथ और भी इंशाल्लाह, काफी सारे मुल्कों में हमें कभी इंशाल्लाह, देंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यार। भी कोई एक रियूनियन करते हैं, और भी काफी लोग मेरा ख्याल से अहमद हो गया जर्मनी में, तो करते हैं रियूनियन, मिलते हैं। वो चीज़ें रिकॉर्डिंग के ये बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलो। थैंक यू एवरीवन यार, थैंक यू साजिद, ठीक मुझे हो गया। बुलाने के लिए। हाँ थैंक यू थैंक यू फॉर सो योर मच। हाँ टाइम। यार मैं ये सीरीज शुरू कर रहा था, मेरा प्लान ये था बेसिकली कि जो भी अपने दूसरे कंट्रीज में दोस्त वगैरह हैं उनसे बंदा बैठ के डिस्कस कर ले चीज़ें। तो साथ वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं अक्सर, तो उनको डायरेक्ट इंसाइट मिल जाती है फ्रॉम द रेलिवेंट पर्सन। जैसे अभी वली कनाडा में बैठा हुआ है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में कुछ दोस्त हैं, तो प्लान है उनके साथ करने का। बट देखते हैं। थैंक यू सो मच, तुम फर्स्ट ओके, थैंक यू। सेशन अच्छा रहा, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अंटिल सेशन। थैंक यू, थैंक और यू। थैंक यू साजिद यार, थैंक यू।